This call is now being recorded. कल से शुरू हो गया। जी जी, कल 2 लेक्चर हुए थे। एक तो अरशद हुसैन साहब हैं जो एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं, पहला उनका था। अच्छा। और दूसरा प्रोफेसर अनूप कुमार भारतीय, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज पहला आपका है, उसके बाद फिर मतीन साहब का है, फिर सायरा महनाज जो कम्युनिटी डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के चेयरपर्सन है। अच्छा। आज 3 ये है। तो मैं समझता हूँ लोग ज्वाइन कर लेंगे सर, शुरुआत करते हैं। सो जी। गुड मॉर्निंग टू all the esteemed faculty members and the participants, and very good morning, sir, the resource person Professor Akbar Hussain, former Dean, Faculty of Social Sciences, former Chairperson, Department of Psychology, Aligarh Muslim University, Aligarh, and Acting Vice Chancellor of Aligarh Muslim University, Aligarh. As we know that Professor Akbar Hussain has been honored with the DLIT in the exploration and application of his spirituality in psychology. He has successfully supervised 6 postdoctoral fellowship and more than 38 PhD theses and the 10 MPhil dissertations in Aligarh Muslim University, and he has authored, co-authored, and edited more than 44, means now coming the number is more than 50 books, and contributed about 300 research papers, articles, books chapter in national and international journals and books. Professor Hussain was offered founding member of the International Board of the International Transpersonal Association USA in 2009. He has visited several countries for attending conferences and teaching assignments. Professor Akbar Hussain received very prestigious award which has been given by the Aligarh Muslim University, that is Sir Syed Innovation Award in 2018, and for the outstanding researcher of the year. Currently, the areas of the research of Professor Akbar Hussain are the clinical health psychology, counseling psychology, positive and spiritual psychology, psychological testing, and Islamic and Sufi psychology. Sir, with these words, I welcome you on behalf of the Department of Social Work, on behalf of the coordinator, Dr. Muhammad Tahir, and the Director, MMTC, HRDC, and other members of the participants. So, sir, we welcome you, and we really express our gratitude and thanks to accept our invitation and to share your vast experience in the discipline of the psychology, since it is very much related with the community engagement and the classroom teaching. So, with these words, once again, I welcome you, sir. And now I will request you to please interact with the participants of the short-term course. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, Professor Naseem Ahmed Khan Sahab, Chairman Department of Social Work, Aligarh University, Aligarh, and Dr. Muhammad Tahir, coordinator of this program, and Dr. Faiza Abbasi, the Director at MMNTC Center, Aligarh Muslim University, Aligarh. So, dear participants or the teachers, the topic of my presentation is nurturing
a supportive classroom community, intrinsic and extrinsic motivation to learners of higher education. So as you know that motivation is a complex phenomena or that drives individuals to engage in behavior and strive towards goals. So in other words, you can also say that it is a goal-directed behavior. So first, I would like to know the feedback of the participant, whether I should deliver the lecture only in English or in bilingual. Sir, it दोनों could be lecture bilingual. हैं? It could be bilingual, sir. अच्छा, ओके ओके. तो एजुकेशन के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, पर्टिकुलरली इन स्टूडेंट एंगेजमेंट, लर्निंग में, एकेडमिक अचीवमेंट में. तो फॉर दिस बोथ, दैट इज टू से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं मोटिवेशन को, और which also can help educators foster a more stimulating and productive learning environment. कि एक तो खुद से लोगों के अंदर होता है भाई इंटेंसिक मोटिवेशन होता है कि मतलब आपके इंटरनल डिजायर जिसमें हम कहते हैं कि एंगेज इन, और एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी होते हैं कि भाई दूसरे लोग हैं मतलब आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि मतलब हाउ टू अचीव दैट. जैसे टीचर है, टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि हाउ टू अचीव योर गोल in a certain period of time, or whether what kind of the goal should be set, कि वो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए. तो यानी कि उनमें कोई आपके देयर शुड नॉट बी टू मच डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड परफॉर्मेंस, कि आप एक्सपेक्ट कुछ करते हो और परफॉर्मेंस कुछ देते हैं आप, तो उसमें मतलब गैप नहीं होना चाहिए उतना. देयर शुड नॉट बी टू मच डिस्क्रिपेंसी. तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन पहले हम बताना चाहते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, इट स्टेम्स फ्रॉम एन इंटरनल डिजायर टू एंगेज इन एन एक्टिविटी फॉर द इनहेरेंट सेटिस्फेक्शन. कि मतलब ठीक हमारी खुद डिजायर है कि भाई हमें किस चीज में सेटिस्फेक्शन मिलता है या कुछ है, वो हमें प्रोवाइड करता है वो हमारे गोल अचीवमेंट के लिए. तो स्टूडेंट्स हु आर इंटेंसिकली मोटिवेटेड आर ड्रिवन बाय ए क्यूरियोसिटी, उनके अंदर होती फीलिंग ऑफ चैलेंज होता है उनके अंदर, और कुछ डिजायर होती टू लर्न पर्सनल फुलफिलमेंट, कि हमें कुछ करके दिखाना है, हमें कुछ अचीव करना है. तो वो दे आर ऑफन पैशनेट अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, और देखना चाहते हैं, और फाइंडिंग द लर्निंग प्रोसेस जो है हमारी, वो इटसेल्फ टू बी रिवार्डिंग. जैसे अक्सर होता है मेमोरी में हम कहते हैं कि भाई होल मेथड होता है, एक पार्ट मेथड होता है. अब जिसको जिस मेथड सूट करता है लर्निंग के लिए, होल वर्सेस पार्ट मेथड में, तो वो आपने उसको ऑप्ट कर लेता है. तो अकॉर्डिंगली एनी हाउ व्हाट एवर द गोल एंड इंडिविजुअल सेट should be realistic, as well as it should also be provide some sort of satisfaction to the learner. तो अब जैसे हम एग्जांपल्स देना चाहते हैं आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन की, तो उसमें क्या होता है, पहला है होता है क्यूरियोसिटी एंड डिजायर टू लर्न. तो ये खुद आपके अंदर मतलब अंतरूनी तौर पे होना चाहिए. मतलब ये नहीं कि हमने अक्सर पुराने लोग कहा करते थे कि भाई हम कोई सीखने के लिए या कुछ तुम्हारे नंबर अच्छे ना आए घुट्टी थोड़ी पिला देंगे. तो खुद तो कहते क्यूरियोसिटी हो और डिजायर टू लर्न. तो कहते स्टूडेंट्स आर नेचुरली क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, एंजॉय एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज एंड कंसेप्ट्स. जैसे बच्चों को होता है, बच्चे क्या ट्रायल एंड एरर से, अब आजकल जो है हम लोगों से के मुकाबले बच्चे ज्यादा लर्न कर लेते हैं. जैसे सॉफ्टवेयर है तो हम प्रोग्राम्स है,
नहीं भी लर्निंग प्रोग्राम्स है। तो कहते हैं कि न्यू आइडियाज और कंसेप्ट्स की क्यूरियोसिटी और जिनको होती ज्यादा वो मतलब बच्चों का इंट्रिंसिक मोटिवेशन स्टूडेंट्स के बहुत होते हैं। फिर क्या है, सेंस ऑफ चैलेंज हो कि स्टूडेंट्स के आपके अक्सर हम एक्सपर्ट साइकोलॉजी में पर्सनालिटी के तौर पे 3 चीजें बताते हैं आदमी को। हार्डी पर्सनालिटी हो, हार्डी, HARDY। हार्डी पर्सनालिटी में क्या है, चैलेंज हो, कंट्रोल हो और कमिटमेंट हो, कोई भी गोल अचीव। तो कहते हैं स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड बाय चैलेंजेस that are appropriate to their skill level and provide opportunities for growth। समझे? अब देखते रहते हैं, अब कल ही बात चल रही थी कि भाई अक्सर हो रहा भाई, जैसे सॉफ्टवेयर में है आजकल बच्चे इंगेज हैं आईटी फील्ड में बहुत ज्यादा ही ये वो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये भी आउटडेटेड चीज हो जाएंगी। तो अब जैसे रिसेंट ईयर्स में आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत ज्यादा कदम रख रहे हैं, इवन दी फैकल्टी सोशल साइंस में भी, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इज नो मोर कन्फाइंड ओनली टू द डिसिप्लिन ऑफ द फिजिक्स और इंजीनियरिंग, सभी सब्जेक्ट्स में आता जा रहे हैं इसके। तो कहते हैं सेंस ऑफ चैलेंज हो कोई। फिर क्या है, थर्ड है पर्सनल इंटरेस्ट एंड पैशन हो। तो स्टूडेंट्स हु आर मोर लाइकली टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड when they are interested in the subject matter and find it personally relevant। कोई भी सब्जेक्ट देखिए, कोई हमें एज ए टीचर स्टूडेंट को बताना है कि कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है। वट एवर द सब्जेक्ट यू चूज, योर एफर्ट और योर मेन एम शुड बी टू एक्सेल इनटू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। क्या आपको एक्सेल करना है, बस ये होना चाहिए। इस तरह ब्रांच है तो ब्रांच कोई नहीं खराब होती। अब आप जिसमें अपना आपका इंटरेस्ट है और पर्सनल इंटरेस्ट और पैशन है वो आप अपना चूज कर लीजिए। तो आजकल इतना पेरेंट्स शुरू में तो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले बहुत इन्फ्लुएंस करते थे बच्चों को विद रिगार्ड टू चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स और वोकेशनल चॉइस, लेकिन आजकल नहीं इतना, क्योंकि बच्चे खुद दे आर वेरी मच अवेयर about what the subject is to be opt or which particular subject is and what are the institutions which are available in India where they can get good education। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स फॉर स्टूडेंट्स के लिए है ए सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मास्टरी। तो उसमें क्या है, सेंस ऑफ एकम्पलिशमेंट हो टू इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड नॉलेज कि मतलब क्योंकि इतनी तेजी से आजकल सब्जेक्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम लोगों के सब्जेक्ट में, मैं अपनी सब्जेक्ट की एग्जाम्पल दी कि 54 डिविजन्स हैं हमारे यहाँ एज पर द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो अब कौन सा डिवीजन है जो आदमी ऑप्ट करे एंड विच कैन बी हेल्पफुल टू बिकम ए गुड प्रोफेशनल एज वेल एज टू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स। इस तरह 18 डिविजन्स हैं एज पर द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो हमें क्या है कि कॉम्पिटेंस मास्टरी हमें किस में है कि जिससे कि हमारी नॉलेज स्किल्स एंड नॉलेज बढ़े, वो कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, फिर आया हमारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जो हमें बाहर वाले, यानी कि एज ए स्टूडेंट को जो है एज ए एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर टीचर है सबसे बड़ा, पेरेंट्स हैं। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अराइजेस फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स से आते हैं दैट आर सेपरेट फ्रॉम द एक्टिविटी इटसेल्फ। तो अब स्टूडेंट के लिए एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कौन हो सकते हैं, ग्रेड्स हो सकते हैं, प्रेस करते हैं हम लोग, प्रशंसा करते हैं भाई चलो बहुत अच्छे नंबर है, और टेंजिबल रिवार्ड्स भी दे देते हैं। अब जैसे आजकल बच्चे अक्सर होता है कि भाई मतलब दे प्रेफर टू डू बार्गेनिंग विद देयर पेरेंट्स कि अगर इंटरमीडिएट पास कर लेंगे तो हमें मोटरसाइकिल चाहिए, या हाई स्कूल पास कर लेंगे फर्स्ट डिवीजन या 80% जब आ जाए हमें हाई स्कूल वो दिलाइएगा, समझे। तो ये सब चीजें हैं।
तो कहते हैं एक्सटेंसिव मोटिवेटर्स कैन बी इफेक्टिव इन शॉर्ट टर्म, they may not lead to long term engagement or deep learning. तो कंपेयर टू इंट्रेंसिक फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये तो वक्ती तौर पे होते हैं ज्यादातर। जब कोई चीज से हुई आपको कि ठीक है आपको मोटरसाइकिल दिला दी, अब क्या, अब ये थोड़ी कि मोटरसाइकिल अब पेरेंट्स देखते फिरे या घूमते रहे कि कहाँ गए या कोचिंग करने जा रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं, समझे। तो कहते हैं ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, और लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट एंड डीप लर्निंग के लिए दे मे और मे नॉट बी इफेक्टिव, लेकिन जल्दी नहीं होते। अब इसके देखिए हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि एक्सटेंसिव मोटिवेटर्स क्या हो सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या, ग्रेड्स एंड एकेडमिक अचीवमेंट। तो स्टूडेंट्स में बी मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू अर्न गुड ग्रेड्स और अचीव एकेडमिक सक्सेस। तो अचीवमेंट ही है। तो अब देखिए, अब जब हम अचीवमेंट की बात करते हैं तो अचीवमेंट जो है हमारा अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट है, इट इज ये आप एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं, एडजस्टमेंट, और एज ए प्रोसेस भी है। तो एक तो अचीवमेंट एज एन एडजस्टमेंट से मतलब क्या है कि आपने, कोई भी बच्चे ने कोई अपना क्लास पास कर लिया, 90% पास कर लिया, हाई स्कूल एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट, तो ठीक है, ये एडजस्टमेंट एज एन अचीवमेंट हो गया। और प्रोसेस में क्या है कि हाउ ही शुड मेंटेन द सेम ग्रेड इनटू द नेक्स्ट और द हायर लेवल में कहाँ तक मेंटेन करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट कहलाती है। फिर एक्सटेंसिव मोटिवेटर फॉर स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, प्रेज हो सकता है, प्रेज एंड रिकॉग्निशन। तो उसमें क्या है, स्टूडेंट्स में बी मोटिवेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक, प्रेज फ्रॉम टीचर्स और पीयर्स, और रिकॉग्निशन फॉर देयर एकम्प्लिशमेंट्स। तो अक्सर ये होता है बहुत से लोगों कि भाई 90% मार्क्स आए, इंजीनियरिंग में आ गए या और किसी सब्जेक्ट में आ गए, नौकरी नहीं मिली, और जबकि 65-70% वाले को मिल गई। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर स्किल्स है, उसने डेवलप की अपनी, खाली ये नहीं। तो बहुत से हम लोग अक्सर सवाल करते रहते, कहते रहते भाई कि यूजीसी जेआरएफ कर लिया, नेट कर लिया, तो वो एक खुद उसके अंदर वो आ जाता है, एक तरह का सेल्फ एस्टीम हाई हो जाती है, अरे हमने तो अब ये कर लिया। तो इतना नहीं, एज कंपेयर टू दोस who are not qualify or who have qualified only net as compared to JRF। तो उसके अंदर होता है कि चलो हमें अभी और मेहनत करना है, हमें कुछ करना है जल्दी में काम, ये वो। तो कहते हैं रिकॉग्निशन जो है हमें मिलना चाहिए, चाहे टीचर से हो, पेरेंट्स से प्रेज हो कि भाई ठीक है आपने व्हाट एवर यू डिड, तो रियली यू डिजर्व टू बी। फिर नेक्स्ट है टेंजिबल रिवार्ड्स। तो टेंजिबल रिवार्ड्स में क्या है कि एक तरह का कहना चाहिए, जैसे होता ना कि अक्सर होता है सोशल सपोर्ट में हम जब बात करते हैं टेंजिबल रिवार्ड्स में, तो कहते हैं क्लोथिंग है, शेल्टर है, तो ये सोशल सपोर्ट है, लोग जैसे पॉवर्टी रिडन लोगों को। तो इस तरह स्टूडेंट में भी मोटिवेटेड बाय रिवार्ड सच एज प्राइजेस है, स्कॉलरशिप्स है, और अदर टेंजिबल इंसेंटिव्स में ये है। तो वो बहुत जरूरी है। तो बहुत से बच्चे हैं हमारे पास बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, सिंस दे बिलोंग टू दी पुअर फैमिली, दे आर नॉट एबल टू कोप विद इट, और दे आर नॉट एबल टू pursue their studies। तो उसमें ठीक है, so sometimes if the teacher is aware, तो he should motivate, or he should help to the such type of students so that they may pursue their studies, or you may say, or further they may develop their desire to achieve further academic success। तो tangible rewards भी बहुत जरूरी है। तो कहते हैं अवॉइडिंग
नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ये होना चाहिए कि स्टूडेंट में बी मोटिवेटेड बाय द फियर ऑफ फेलिंग, रिसीविंग नेगेटिव फीडबैक और फेसिंग डिसिप्लिनरी एक्शन। समझे? तो बहुत से लोगों के अंदर फियर ऑफ फेल्योर होता है, समझे? तो वहां पे हमें क्या है कि वो एक्चुअली क्या है, एज एन एक्सटेंसिव मोटिवेशन होप ऑफ सक्सेस होना चाहिए, समझे? और निगेटिव फीडबैक मत दें उसे, या फेस डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं, कि कोई मतलब कि ठीक अगर कोई नंबर कम आ गया किसी वजह से भी ये है, तो अब ये नहीं कि उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है या कुछ कह दिया गया कि भाई क्या फायदा ऐसी पढ़ाई से, और ये वो तो उसमें कंटिन्यू नहीं कर सकते हो तुम, ये तो इस टाइप के निगेटिव नहीं पनिशमेंट हो। फिर कहते हैं अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, हम क्लासरूम में एज ए टीचर आप कैसे उसको करेंगे। तो कहते हैं अब यहाँ पे आई क्रिएटिंग ए क्लासरूम इन्वायरमेंट दैट फॉस्टर्स, डेवलप करता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन्वॉल्व्स emphasizing the inherent value of learning and encouraging students to pursue knowledge for personal fulfillment। अब यहाँ पे भी हम आपको इंटेंसिव मोटिवेशन इन द क्लासरूम सिचुएशन में जो हो, तो उसकी भी हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताना चाहेंगे कि पहला है क्रिएट ए लर्नर सेंटर्ड इन्वायरमेंट। उसमें क्या है, आपको फोकस करना है स्टूडेंट के इंटरेस्ट को, नीड्स को और लर्निंग स्टाइल्स। तो encourage students to take ownership of their learning and explore topics and pick their curiosity, कि किस किस्म का टॉपिक बच्चे सेलेक्ट करते हैं या क्या उनका इंटरेस्ट है, या अगर क्रिएटिविटी की हम बात करें तो इसमें क्रिएटिविटी में उनका क्या मतलब फ्लेक्सिबिलिटी एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके क्रिएटिविटी के लिए, या ओरिजिनलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो एस्पेक्ट को हम को क्रिएट करना है आपके क्लासरूम सिचुएशन में, कि लर्नर सेंटर्ड इन्वायरमेंट हो, समझे? तो वो ज्यादा, अब जैसे अब एक टाइम पे था भाई टेबल्स थी, तो टेबल्स क्या होता था कि सिखाते थे, तो उसमें क्या होता था हम लोगों के टाइम पे, स्टूडेंट टाइम पे वो आपके ज्यादातर पहाड़े या टेबल सिखाते थे, तो क्या था आपके जब लर्निंग करते थे या कुछ सीखते थे तो वो रिपीटिशन करवाते थे, बात बात उसको रटो। अच्छा, फिर पेरेंट्स भी ये बताते कि भाई सोने से पहले बच्चे को कहते थे कि भाई देखो चलो पढ़ाओ, सुनाओ 2 का पहाड़ा, 3 का सुनाओ, 4 को सुनाओ, या और बीच बीच सुबह करते थे। अब क्या है, स्टूडेंट्स बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन द डिवाइसेस, कंप्यूटर पे हो गए, कैलकुलेटर पे हो गए, तो वो उससे उनकी क्या होता है कि एक ग्रोथ जो है या कुछ लर्निंग का वो रिटार्ड भी हो रही है। साफ बात होना आपसे, यानी कि आजकल अब कहने वाली बात है कि हम लोगों के अंदर भी, टीचर्स में भी लर्निंग डिसेबिलिटी भी डेवलप हो रही है। वो कैसे डेवलप हो रही, कोई भी स्पेलिंग है, अब हमने खड़ा कर टाइप कर दिया, क्या भाई अरे वो तो खुद सही कर देगा, तो हम आपको भी नहीं उतनी वो वो हो रही। तो कहते हैं कि उसके लिए जरूरी है कि इम्फेसाइज करें द रिलीवेंस ऑफ लर्निंग, इम्फेसाइज करें, यानी कि क्या है, कनेक्ट लर्निंग टू स्टूडेंट्स लाइव्स एंड शो देम हाउ द नॉलेज एंड स्किल्स दे गेन कैन बी अप्लाइड इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। क्योंकि क्या ज्यादातर हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको नॉलेज और कहना चाहिए आपके प्रैक्टिस से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा ही है। अच्छा, बाहर कंट्रीज में क्या प्रैक्टिस का है, नॉलेज नहीं, चीजें उतनी डेवलप हो रहा है। तो कहते हैं देयर शुड बी ए
a sort of interrelationship between knowledge and practice. अच्छा, लेकिन उसके beyond भी experience also plays a more important. पुराने लोग कहा करते थे कोई बात होती, अरे भाई तजुर्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्सपीरियंस है, तो नॉलेज, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं तो उसके लिए क्या है कि आपको प्रमोट करना है। क्या प्रमोट करना है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जो खासतौर से हायर एजुकेशन में तो कम ही करते हैं हम प्रमोट। स्कूल लेवल पे तो जब भी कर लेते हैं कि भाई बच्चों को है इनकरेज कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन पूछो, मतलब तो उसके लिए कहते हैं इवन हायर एजुकेशन में भी कि इनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम्स एंड सीक आउट न्यू इंफॉर्मेशन थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। अब जैसे 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो गया, तो 4th ईयर में भी अब क्या रिसर्च वगैरह को जो बाहर कंट्रीज में हुआ करती थी, समझे? तो कहते हैं आप खुद बच्चे को, अक्सर क्या होता है हम लोग क्या इवन की पीएचडी वगैरह में भी हम लोग अक्सर प्रॉब्लम है खुद टीचर देते हैं, मतलब स्टूडेंट से बहुत कम कहते हैं कि जाओ तुम एक्सप्लोर करो और देखो जाके। पहले तो ये होता तो भाई हम लोगों के टीचर भी थे तो कहते थे नहीं भाई जाओ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो जाके, और उसमें देखो कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन सी है। तो उसमें बिल्कुल टोटली अब आजकल हालांकि जबकि इतनी नॉलेज है और सब इंफॉर्मेशन उस पर भी आ रही है, नेट पे भी है, गूगल सर्च में भी है, और बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती। पहले तो सब ट्रायल एंड एरर बेस पे चलते थे हम लोग। हाँ, तो कहते हैं कि वो जरूरी है। तो उस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज for challenge and growth. तो कहते हैं ऑफर टास्क एंड एक्टिविटीज दैट आर अप्रोप्रिएटली चैलेंजिंग द स्टूडेंट्स। उनको ऐसा दें जो कि उनके स्किल्स लेवल को एनहांस करे एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू स्ट्रेच देयर एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। तो वो जरूरी है। अच्छा, अब उसमें भी क्या होता है जैसे रिसर्च वगैरह होता है, अब यूएस वगैरह में क्या होता है, या तो वहां तो क्या है लोग वर्टिकल चलते हैं, एक टॉपिक लिया, एक एरिया लिया, उसी में चलते जाते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या हॉरिजॉन्टल चलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मैटर, क्या कितना हमारे पास मौजूद है, कौन सा लिटरेचर है, कौन से जर्नल आ रहे हैं, या कुछ उसी हिसाब से हम अपना ग्रो करते हैं। तो वो इंक्लूसिवनेस जो है हमारे, यानी इंटेंसिव मोटिवेशन उतना नहीं होता कि जो चीज अवेलेबल है तो वो बता दी। और हम लोग खास तौर से आर्ट सोशल साइंस में तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि भाई रिसर्च क्या है हमारे यहाँ, वो ये शिफ्टिंग ऑफ बोन्स फ्रॉम वन ग्रेवयार्ड टू अनदर। क्योंकि बीइंग अ टीचर अक्सर होता है अरे भाई पीएचडी कर लो जल्दी, ऑन बिकॉज इट हैज ऑर्नामेंटल वैल्यू, करते रहे, जिंदगी पड़ी है। लेकिन नहीं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिसर्च either the research is being pursued in order to obtain either the graduate degree or master's degree or PhD degree. मतलब we should motivate, a teacher should motivate students to do such type of work which can be more meaningful or which can be more um, helpful to develop the skills and abilities. The last point है कि celebrate student achievement and progress. To recognize and celebrate students' efforts, accomplishments and growth, both bigger as well as small way. So positive reinforcement can boost self-esteem and encourage continued effort. तो पर्सनल सेल्फ स्टीम, पर्सनल बिलीफ उसके अंदर क्या, हाँ भाई हमने ये अचीव किया, अभी हम अब ये कर सकते हैं, तो वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उसको सेलिब्रेशन होना चाहिए एक तरह का एकम्प्लिशमेंट का, चाहे एक ग्रुप लेवल में हो या
आपके कहना चाहिए इन द क्लासरूम सिचुएशन हो कि भाई करें, या कॉलेज लेवल पे जैसा अक्सर होता है कि भाई जब वो मिलते हैं तो कहीं कहीं होता है कि एनुअल फंक्शन होता है, उसमें हम उन सब चीजों के अवार्ड देते हैं और बताते हैं कि भाई कि इनको ये मिला अवार्ड। फिर अब इसी तरह से एक्सटेंसिक मोटिवेशन को हम सपोर्टिव वे में कैसे वो करें, इनहांस करें, यानी कि इनहांसिंग एक्सटेंसिक मोटिवेशन इन ए सपोर्टिव वे। तो कहते हैं एक्सटेंड एज यू नो, जैसे हमने बताया भी है आपको कि एक्सटेंसिव मोटिवेशन कैन बी मोर इफेक्टिव इन द शॉर्ट टर्म। तो लेकिन एनी हाउ इट इज यूजफुल, इट इज क्रूशियल टू यूज देम इन अ वे दैट कॉम्प्लीमेंट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन रादर देन अंडरमाइनिंग इट। समझे कि ठीक है, इंटेंसिव मोटिवेशन है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी भाई जब आदमी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है डेवलप करने की, या कुछ उसको मिलता है, चांस मिलता है, तो ठीक है, वो बहुत से जो है ठीक है, टाइम बीइंग है, शॉर्ट टर्म है, बट इवन दैट दे डेवलप दिस एबिलिटी। तो उसके लिए क्या एक्सटेंसिव मोटिवेशन सपोर्टिव वे में हम देयर आर सर्टेन थिंग्स, द पॉइंट्स व्हिच आर मोर इम्पोर्टेंट to enhance extrinsic motivation to the learner। अब क्या है, सबसे पहला है प्रोवाइड टाइमली एंड स्पेसिफिक फीडबैक। उसमें क्या, ऑफर रेगुलर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दैट हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे इंडिविजुअल है, अगर आप, जब हम बात करते हैं तो हर इंडिविजुअल में देखिए फिजिकल स्ट्रेंथ भी होती है, सोशल भी होती है, स्पिरिचुअल भी होती है, रिलीजियस स्ट्रेंथ भी होती है, इमोशनल स्ट्रेंथ भी होती है। तो कौन सी स्ट्रेंथ है विच इज सपोज टू बी इम्प्रूव्ड? अब जैसे क्या है, अगर आप देखें आईआईटियंस को देख लीजिए, अब क्या है, दे लैक इन इमोशनल स्ट्रेंथ। उनके अंदर क्या है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ बहुत है, इमोशनल नहीं, because of certain pressures in the studies। इतना ज्यादा वो है कि hardly they get time or appropriate time or sufficient time to have a interaction with others। फिर सेकंड है कि यूज रिवार्ड्स स्पेयरिंगली एंड स्ट्रेटेजिकली, कि कौन सा रिवार्ड हम करें, यानी कि occasional रिस्पॉन्स में, या पॉजिटिव बिहेवियर स्पेसिफिक रादर देन एज द प्राइमरी मोटिवेटर, कि हम कौन सा स्ट्रेटेजिकल, ये भी है कि कौन सा रिवार्ड किस टाइम दिया जाए उसे, सो दैट the students they feel that this is important for my growth, as well as to show others that we are also able to surpass the others। जैसे अक्सर होता है ना, जैसे क्रिएटिविटी लेवल की बात होती है, इंटेलिजेंस की बात होती है। अब यही नहीं कि भाई देखिए कि हम सब जो बच्चे अर्बन उसमें एरियाज में रह रहे हैं या स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, सब कह लीजिए इंग्लिश मीडियम स्कूल वही बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। वो भी हैं जो बच्चे अपना एक, जैसे हम लोग टाइम पे था, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे होते थे, पेरेंट्स भी इतनी सैलरीज नहीं होती थी, या पेरेंट्स भी इतना नहीं मोटिवेट करते थे कि कॉन्वेंट एजुकेटेड में जाओ एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। अब हर आदमी चाहता है कि भाई वहां पढ़ो, वहां करने। तो कहते हैं कि आपको स्ट्रेटेजिक अडॉप्ट करना है कि कब हम एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करें, और विच और एज ए प्राइमरी मोटिवेटर काम करें। फिर द अदर फैक्टर इज emphasize the learning process over grades। अब क्या है, ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, समझे कि 95% ले आए, समझे। तो कहते हैं कि हमें
फोकस करो वैल्यू ऑफ लर्निंग के ऊपर एंड ग्रोथ रादर देन सोनली ऑन ग्रेड्स एंड टेस्ट स्कोर्स। अब अक्सर होता है भाई किसी का, अरे भाई बड़ा रटने वाला है भाई, देखो रट के उसने नंबर ले आया। जो एक आदमी अपना खुद लिख रहा है, अपना कुछ कर रहा है, तो उसको कोई वो नहीं। तो अब क्या है, अब हमारे यहाँ भी फ्रेंकली स्पीकिंग कि जो हायर एजुकेशन हो चाहे कुछ, अब हमारे यहाँ भी रिटायर्ड हो रही है ग्रोथ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए कि अब हम उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं टू एक्सरसाइज देयर स्किल्स ऑफ राइटिंग और समथिंग, और डेवलपिंग देयर ओन इंटेंट। वो हर चीज में वही ऑब्जेक्टिव आता चला जा रहा है, ये सब चाह रहा है, तो उससे उसकी कोई वो थोड़ी हो रहा, एक्सप्रेशन थोड़ी हो रहा कोई लर्निंग का इंटरेस्ट का। तो कहते हैं इनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट पर्सनल गोल एंड सेलिब्रेट देयर प्रोग्रेस। कि वो अपना भी खुद गोल सेट करे कि भाई कितना है, कितना अचीव करना है या कुछ। अब अच्छा, अब क्या हम लोगों के अभी अब नंबर्स बहुत इन्फ्लेटेड मार्किंग करते हैं, समझे, क्योंकि उसकी वैल्यूज समझी आ रही। पहले था बहुत से सब्जेक्ट हुआ करते थे आर्ट सोशल साइंस में जिसमें फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आती थी मास्टर्स लेवल पे, और लोग टॉप करते थे। तो अब वो जो है फर्स्ट डिवीजन की ज्यादा नंबर है, क्योंकि उसकी एक ऑर्नामेंटल वैल्यू है, उसकी वैल्यू है, एक सोसाइटी में भी है, कम्युनिटी में भी है, फैमिली में भी है। तो अब एज कंपेयर टू दर्स, फिर कहते हैं प्रमोट ए ग्रोथ माइंडसेट। समझे, अब कहते हैं इनकरेज स्टूडेंट्स टू व्यू चैलेंजेस as opportunities for learning and growth rather than as indicators for their intelligence or abilities। कि इंटेलिजेंस एबिलिटी नहीं, इंटेलिजेंस एबिलिटी जो है वो आपकी, अब वो भी बहुत टाइप की हो गई है इंटेलिजेंस की, खासतौर से। हाँ, हेलो हेलो তুমি যিটো কবা গেছা এখিনি গম পাও, এইটো কথাটো থাকবই কাৰণ আইনত আছে। हेलो न्यूज़ चलना चाहिए आप लोग। हाँ, तो कहते कि स्टूडेंट्स को एनकरेज कीजिए और लर्निंग एंड ग्रोथ के rather than as an indicator of intelligence and ability। वो चीज नहीं होना चाहिए कि जो भी आपका, कि जो वॉट एवर द एक्टिविटी और द सब्जेक्ट यू चूज, मतलब मस्ट रेज देयर लेवल ऑफ यू में से learning and growth। अब now the question arises how to faster or develop growth mindset in education में, कैसे आप उसको वो करें। तो कहते हैं fostering a growth or mindset in education involves shifting the focus from fixed abilities to the belief that intelligence and skills can be developed through effort and perseverance। कि इससे डेवलप हो सकती है आपके अंदर, समझे, माइंडसेट। मतलब ये नहीं कि जो घिसा पिटा सब्जेक्ट है या जो मैटर मिल जा रहा है या कुछ। अब आजकल कैसे होता है कि हम लोग ग्रोथ स्टूडेंट इंकरेज कैसे करते हैं कि गूगल सर्च पे पढ़ रहे हैं, मटेरियल पढ़ रहे हैं, कौन सा मैटर में अवेलेबल है या कुछ है, तो उससे वो मतलब देखते हैं कि क्या मतलब। तो कहते हैं दिस शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव it can have a profound impact on student motivation, engagement and achievement। तो यानी कि क्या है, हमें जो फोकस है, यानी कि समटाइम्स इट इट इज आल्सो टू बी शिफ्टेड फ्रॉम यू में से द individual level to the group level or the community level, like the subject, like the social work। So social work as a discipline, you may say, it is not only confined to the individual level rather than community level, that how the, I mean, you may say, things can be improved through participation or engagement of the community in any particular area or the set।
तो अब तो here I would like to tell you in brief about the key characteristics of a growth mindset. तो उसमें क्या है, पहला है इंटेलिजेंस एंड स्किल्स आर नॉट फिक्स्ड बट कैन बी डेवलप्ड। ये नहीं कि जो होता अक्सर लोग, अरे भाई ये तो बहुत से लोग होते हैं, अरे ये तो पैदाशी है, सही है, डल है, समझे? ऐसा नहीं है, नथिंग लाइक दैट। अब जैसे आजकल है ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मतलब रादर देन द एकेडमिक इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या है, एबिलिटी टू हैंडल रिलेशनशिप एंड मेक्स गुड पर्सनल डिसीजंस आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर द रियल लाइफ सक्सेस। तो कहते हैं इंटेलिजेंस एंड स्किल्स आर नॉट फिक्स्ड, ये ध्यान रखिए, इट कैन बी डेवलप्ड। तो इंडिविजुअल्स विद ए growth mindset believe that their abilities can be improved through hard work, dedication, learning from mistakes। कि जो गलतियां हम उनसे बहुत सीखते हैं कि भाई क्या वो हुआ है, और परसिवरेंस हो आपके अंदर, स्ट्रेंथ हो, हार्ड वर्क हो की आदत हो, डेडिकेशन हो, डिटर्मिनेशन हो, डिवोशन हो आपके अंदर, तो आप यू कैन डेवलप योर स्किल्स एट एनी टाइम। अब देखे नहीं, स्टेटिस्टिक्स में नोबेल लास्ट ईयर मिला एक इंडियन ओरिजिन के रहा, तो उन्होंने सब काम रिटायरमेंट के बाद किया, हम राधा कृष्णन जी ने। तो अब उनका मोर देन 100 ईयर्स पे को मिला। तो बहुत से लोग हैं, तो अब इसकी कोई वो नहीं है कि अरे भाई ये इंटेलिजेंस जो है या कुछ लोग, कुछ कंपनीज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, वो बस जो क्रिएटिव टाइप का काम है मिडिल एज के लोग देखते हैं, कहते हैं अरे उनका बिलीफ है कि अरे यार ओल्ड एज पे तो आदमी क्या करेगा, अब क्या उसकी ग्रोथ रेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एट एनी लेवल यू कैन एक्सरसाइज और चैनलाइज योर एनर्जी। फिर सेकंड की कैरेक्टरिस्टिक है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। तो उसमें क्या है कि रादर देन व्यूइंग चैलेंजेस एज ऑब्स्टिकल्स, बहुत से लोग होते हैं चैलेंजेस, अरे यार काय को हम अपना करें, जो करना था कर लिया, ये अब जैसे हम लोगों के प्रमोशंस हैं भाई बहुत आसान हो गए, तो बस करने के बाद हम लोग कुछ नहीं करते, सोचते हैं अरे भाई जो करना था हमने कर लिया, अब क्या करना है, अब सिंस वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड द हाईएस्ट grade or the highest level, that is professor। तो कहते हैं rather than viewing challenges as obstacle, individuals with a growth mindset see them as opportunities to learn, expand their knowledge and develop new skills। अच्छा, बहुत सी नॉलेज ऐसा है कि जो जैसे नॉलेज है हमारी स्क्रिप्चर्स में, चाहे कुरान हो, गीता हो, रामायण हो, तो वो नॉलेज जो अवेलेबल है, वो बहुत सी चीजें हमारी आजकल इतने साइंटिफिक चीजें डेवलप होती आ रही, वो नहीं है नॉलेज उतनी। तो वॉट एवर द नॉलेज विच इज अवेलेबल इन डिफरेंट सोर्सेज, अवर एफर्ट शुड बी टू एक्वायर दैट नॉलेज एज वेल एज टू डिसेमिनेट दैट नॉलेज टू अवर स्टूडेंट्स आल्सो, कि अपने स्टूडेंट्स को भी बताएं, और इसके सेट देखें, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में देखें कहाँ इसका एप्लीकेशन चाहिए। फिर लास्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ माइंडसेट के एफर्ट्स एंड परसिस्टेंस लीड्स टू सक्सेस। तो यानी कि क्या है, इंडिविजुअल्स विद द ग्रोथ माइंडसेट बिलीव दैट देयर एफर्ट्स एंड डेडिकेशन विल पे ऑफ इन द लॉन्ग रन, लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट एंड सक्सेस। कि वही आपको है कि जो भी आप अपनी करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, एफर्ट्स है, सक्सेस मिलेगी, वही आपको लॉन्ग रन पे करेगी अल्टीमेटली। वो तो उसमें खास तौर से ये ग्रोथ माइंडसेट का, तो इसमें कोई देयर इज नो सच थिंग लाइक ए एज लिमिट, whatever the knowledge you gain can gain, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो बहुत से प्रोफेशंस ऐसे हैं, अब जैसे हमारे इन लोगों का प्रोफेशन है यूएस वगैरह में, अमेरिका वगैरह में साइकोलॉजिस्ट जो कराते हैं क्लिनिकल, तो अब उन लोगों का 3 years 5 years पे
further examination होते थे, how much they keep knowledge, update knowledge into the different subjects. ये नहीं कि एक बार डिग्री मिल गई और एक बार लाइसेंस मिल गया, नहीं उनका नहीं. तो अमेरिकन बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स एंड प्रोफेशनल साइकोलॉजी, दे कंडक्ट एग्जामिनेशन periodically, you may say after say 3 years or something like that, in order to know how much the professional clinical psychologist is aware or concerned about the development into that particular field. हाँ, अब क्या benefits क्या है? What are the benefits of growth mindset in education? तो उसमें क्या है? Increased motivation and engagement. Students with a growth mindset are more likely to be motivated to learn and engage in challenging tasks. क्यों ऐसा होता है कि because they believe that their efforts lead to improvement. तो कुछ ना कुछ करेंगे तो ज्यादा इंप्रूवमेंट तो हो गई आपके अंदर. कोई डिके थोड़ी होता है. एक आदमी नॉलेज है या दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ लिया तो उससे हम कोई वो हो जाएगा. तो कहते हैं बहुत जरूरी है, बेनिफिट्स में है जो लाभ हमें मिलता है ग्रोथ माइंडसेट का एजुकेशन में. तो एक तो मिलता है कि इंक्रीज करता है मोटिवेशन, एंगेजमेंट, और दूसरा है एनहांस्ड रेजिलियंस एंड परसिवरेंस. रेजिलियंस में क्या है कि हाउ टू बाउंस बैक विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. अब जैसे मेरे लिए है, तो मेरे लिए स्ट्रेस जो है इज नॉट ए डिस्ट्रेस. टू मी stress is a eustress, that is positive indication of growth. मेरे लिए मैं समझता हूँ कि जो भी चीजें होती हैं जो पढ़ता है, लिखते हैं या कुछ है, तो वो हमारे लिए वो नहीं है, डिस्ट्रेस नहीं है कि मतलब इसकी वजह से हमें ये हो गया, बल्कि हमें पॉजिटिव एक तरह का इसको ग्रोथ मिलती है हमें. तो दैट इज इम्पॉर्टेंट. फिर कहते हैं इम्प्रूव्ड तो इम्प्रूव्ड एकेडमिक अचीवमेंट. समझे कि एकेडमिक अचीवमेंट भी इम्प्रूव करता है. कि जो बहुत सी स्टडीज हैं जो शो की गई हैं कि इसमें जो है स्टूडेंट्स हु हैव growth mindset tend to achieve higher grades and demonstrate their greater academic progress and compared to those with a fixed mindset. जैसे अक्सर होता भाई, हम लोग झगड़ा होता है मीटिंग में, अरे जो कोर्स पढ़ा रहे हैं वही कोर्स पढ़ाना चाहते हैं, हर साल पढ़ाना चाहते हैं. बहुत से लोग 20-20 साल से वही कोर्स पढ़ा रहे हैं, 15-15 साल से कोर्स पढ़ा रहे हैं. अब आजकल जैसे देखते रहते ना हम लोग, वैल्यू एडेड कोर्सेज आ गए. ठीक है, तो वैल्यू एडेड कोर्स में भी क्या भाई, अवर मेन एम is to enhance the student's skills and ability, that how he can transform so-called the theoretical knowledge into practice. तो वो कोर्स स्ट्रक्चर जो है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. अब इसके लिए भी हमें क्लासरूम के सिचुएशन में कौन कौन सी हम स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करें. तो एज एन एजुकेटर्स can play a crucial role in fostering or in developing a growth mindset in the students by implementing a number of strategies. आप कर सकते हो. समझे वो क्या है? पहले है emphasize effort and process rather than outcomes. बहुत से लोग होता है, अरे भाई इसके करने से हमें मिलेगा क्या? पहले से कैसे भाई आपको कोई श्योर कर देगा कि तुम्हें ये मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? तो कहते हैं फोकस करो लर्निंग प्रोसेस. समझे, प्रेस करो स्टूडेंट्स के एफर्ट्स, स्ट्रेटजीज को,
and perseverance rather than solely on grades or test scores. ये नहीं। अब जैसे स्टूडेंट लाइफ में तो मेरी कोई कभी ऐसे एफर्ट नहीं हुआ कि मैं टॉप कर जाऊं। एक थोड़ा सा वो था, एफर्ट रहती थी कि अरे भाई जो किताबें प्रिस्क्राइब्ड हैं उसके अलावा भी जरा से किताबें पढ़ी जाए, और किताबों में जो बुक्स में जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड इसके अलावा भी बुक्स कंसल्ट की जाए। तो आई यूज टू गो टू द लाइब्रेरी एंड कंसल्ट द नॉन प्रिस्क्राइब्ड बुक्स और सजेस्टेड बुक्स, वो पढ़ते थे कि भाई कि जरा इसमें देखें इस आथर ने क्या लिखा। तो इसी तरह यहाँ है कि हमें सोनली ग्रेड्स और टेस्ट स्कोर्स को नहीं, हमें उसकी एफर्ट देखना चाहिए, प्रोसेस देखना चाहिए कि कैसे उसने किया, ये दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर ये है कि नॉर्मलाइज मिस्टेक्स एंड इनकरेज लर्निंग फ्रॉम एरर्स। तो क्या है, रिफ्रेम करो मिस्टेक्स को, गलतियां जब तक नहीं होगी, फेल्योर्स नहीं होगा, तो आपके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी लर्निंग और ग्रोथ माइंड से। यानी कि बहुत से लोग होते हैं ना, सोचते हैं सक्सेस सक्सेस सब कुछ मैटर करता है, तो उससे लर्निंग नहीं है आपके अंदर कोई। तो इनकरेज स्टूडेंट्स टू व्यू मिस्टेक्स एज ए स्टेपिंग स्टोन ऑन पाथ टू इम्प्रूवमेंट, कि तुमने क्या गलतियां की हैं या कुछ पहले हुआ था करता था, तो अभी भी है कि भाई कॉपी दिखाई जाती थी तो टीचर सबको एक एक को बताते थे कि भाई तो तुमने ये मिस्टेक कर दी या कुछ। तो उसे ये नहीं कि मतलब तुम उसे ले लो कि अरे यार फेलियर हो गया, अब तो ये तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये तो नथिंग। तो कहते हैं कि आप अपनी रिफ्रेम करो, मिस्टेक्स को देखो, वो अपॉर्चुनिटीज आपकी लर्निंग और ग्रोथ को प्रोवाइड करती हैं। फिर है कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर चैलेंज एंड ग्रोथ, डिजाइन टास्क करो एंड एक्टिविटीज दैट चैलेंज स्टूडेंट्स करंट एबिलिटी एंड encourage them to stretch their limits। अब तुम्हें आप लोग बताना चाह रहे हैं, करीब 15 साल पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था मलेशिया मलाया में। तो वहां उस टाइम पे यानी कि स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते थे। अगर किसी ने कॉपी कर ली तो असाइनमेंट आते थे, तो अब यहाँ तो असाइनमेंट वही जो किताब में लिखा वही स्टूडेंट लिख देते। हार्डली they transform or they follow their or write their own the subject matter into their own words, वो नहीं लिखते। तो उसमें ये था कि वो जहाँ हुआ मोर देन 15% उस टाइम उनका रूल था यूनिवर्सिटी में, तो उसको डिवाइड कर देते थे उस सेमेस्टर के। नेक्स्ट सेमेस्टर यू रीअपियर अगेन और रीसबमिट द असाइनमेंट अगेन विद द टीचर। तो ये एक तरह का क्या होता था, उससे लर्निंग होती थी, सीखता था कि भाई कैसे मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हम कैसे उसको कोप अप करें, कैसे करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर है कि प्रमोट ए कल्चरल फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो इनकरेज स्टूडेंट्स टू सीक एंड रिसीव फीडबैक बोथ फ्रॉम टीचर्स एंड पीयर्स। तो फॉस्टर रिफ्लेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो, आदमी कहते हैं वेयर स्टूडेंट्स कैन लर्न और एनालाइज देयर प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। क्या हुआ फिर आप क्या है नेक्स्ट पॉइंट, सेलिब्रेट करो सक्सेस, सेलिब्रेट सक्सेस एंड माइलस्टोन्स, रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट स्टूडेंट्स अकम्प्लिशमेंट both big and small, highlight their progress, efforts and dedication of learning। तो उसकी करो, मतलब यानी कि लोगों को बताओ, एज ए पीयर ग्रुप बैठिए, आप एक दूसरे को बताइए कि भाई देखो मतलब इसने अगर अचीव किया तो क्या किया, मच टाइम ही डिवोट द स्टडीज एंड द वे ऑफ हिज लर्निंग स्टाइल्स और समथिंग इज टू, तो कहते अब दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर कहते हैं मॉडल ए ग्रोथ माइंडसेट योरसेल्फ।
अपने आप को एज ए टीचर एजुकेटर कैसे करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट ग्रोथ माइंडसेट, कंसर्व ए पावरफुल रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट्स, शेयर योर ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम चैलेंजिंग एंड ओवरकमिंग मिस्टेक्स। समझे? तो अब क्या है, क्या अपने शेयर करो, कोई उसमें वो बात नहीं कि क्या हम के चैलेंजेस हमें कैसे मिले एंड हाउ एज ए टीचर, मतलब व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट हाउ आई ओवरकम दोज ऑब्स्टिकल्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो कहते हैं तो एज ओवरऑल a motivating classroom environment is a cornerstone of effective teaching and student success. A classroom where students feel inspired, engaged, and supported sets the stage for optimal learning experiences. तो क्रिएट करो, आप वो environment क्रिएट करो which involve thoughtful combination of instructional strategies, positive relationship, and conducive physical space. तो यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है क्लास रूम का में, और पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये नहीं आया कि जो अब अक्सर होता है कि ये कोचिंग होती है। अब देखिए कोचिंग में तो कोचिंग में क्या, मैं अपने बेटे का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब उसने की कोचिंग, हमने पेमेंट भी कर दिया 90,000 रुपीज आईपैड, कुछ दिनों बाद चला आया, उसने कहा मैं कोचिंग नहीं करूंगा। तो यार तो हम लोग करते करने लिए ये बता दिए, कोचिंग में वो जिससे जो उनको बताना है वो आके बता देंगे, उसमें हमारी क्या साल पूरी पुराना, हमें जो उनसे कोई क्वेश्चन करना है तो टाइम लिमिट तो बहुत है वहां पे, तो वो हम तो नहीं, तो हम ऐसा है हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। लेकिन ये नहीं है, वो तो जो उन्हें पढ़ाना वो तो उसमें आके बता देंगे, हमारी प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व। तो कहते हैं तो इट इज अ मोर मैटर ऑफ द परसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स और लर्नर। तो अब उसके लिए भी क्या की कंपोनेंट्स हमारे जो है आपके क्या होंगे क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो उसमें कहते हैं पॉजिटिव स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप होना चाहिए। उसमें क्या है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ ए मोटिवेटिंग क्लास, बिल्डिंग रैपो हो, तालमेल हो, डिमॉन्स्ट्रेटिंग केयर हो, शेयरिंग जेन्युइन इंटरेस्ट हो है इन स्टूडेंट्स वेलबींग एंड कंट्रीब्यूट टू ए पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एटमॉस्फेयर हो क्लासरूम का। ये नहीं कि किसी ने कोई सवाल पूछ दिया तो उसे डांट दिया, बैठा दिया, या आप उसको नहीं कर रहे हैं आप जो। और क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स हो, क्लियरिटी इन एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट मोटिवेशन। तो क्लियरली कम्युनिकेट एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस, समझे? क्या आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या आपके अंदर वो होना चाहिए, और बिहेवियरल गाइडलाइंस क्या हो उसके लिए। जैसे बहुत से प्रोफेशन है उसमें क्या एथिक्स है, एथिक्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए वाइटल रोल, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपकी, दैट इज आल्सो मोर इम्पोर्टेंट। अब आजकल देखा नहीं आपने, सिलेबस बनते हैं हम लोग बनाते हैं तो उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी लिखते हैं, लर्निंग आउटकम्स भी लिखते हैं, दोनों चीजें कि व्हेन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, they are more likely to feel motivated and confident in their learning pursuits. तो कोई कोर्स, अब जैसे बाहर कंट्रीज में तो बहुत से कोर्स ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स बताते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, ये नहीं यहाँ की तरह के हमने जो चाहे कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया और कह दिया कि भाई ये पढ़ लो। हम तो कहते हैं फिर हमारा इसको क्लासरूम क्रिएट एनवायरनमेंट के लिए एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि रिलीवेंस and real world connections. So connecting classroom content to real world application enhances relevance and motivates students. Showcasing how academic concepts relate to their lives or future aspirations provide students with a compelling reason to engage with the materialistic.
कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, फ्यूचर एस्पिरेशंस जो है आपके, यानी कि जॉब में अगर आना है तो कौन कौन से कोर्सेज है विच में बी मोर मोटिवेटेड और विच में बी मोर which would provide more opportunities for growth and mindset. तो इसके लिए फिर हमें क्या जरूरी है, देखिए आजकल कि इनकरेजमेंट होना चाहिए स्टूडेंट की, मतलब स्टूडेंट की ऑटोनॉमी को encourage कीजिए. Allowing a student to take ownership of their learning fosters intrinsic motivation. यानी कि क्या, provide opportunities for choice, self-directed projects and collaborative decision making. जैसे मास्टर्स लेवल पे खुद स्टूडेंट्स को कहिए कि भाई तुम अपनी प्रॉब्लम बना के लाओ प्रोजेक्ट की या फील्ड वर्क की बना के लाओ खुद से, समझे. तो यानी कि क्या है, इससे क्या है, यू बीइंग ए एजुकेटर यू कैन empower students to make choices in their learning journey and enhance their sense of autonomy. समझे. अब जैसे ये प्राइवेट में है, अगर आप देखो इंस्टीट्यूशंस में, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आजकल टीचर्स अक्सर कंप्लेन करते हैं 5 कोर्सेज पढ़ाने के दे दिए या कुछ है या फिर, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आजकल ऑटोनॉमी बहुत है, समझे, एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशंस के बहुत देते हैं कि भाई आप सिलेबस भी बनाओ और आप ऐसे प्रोग्राम करो स्टूडेंट्स के लिए विच मोटिवेट, और इंस्ट्रक्शनल मेथड्स यू अडॉप्ट न्यू इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और समथिंग. तो इसके लिए क्या है कि टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज ए पावरफुल मोटिवेटर. तो रेगुलरली प्रोवाइड फीडबैक ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, acknowledging stance and offering guidance for improvement. But the constructive feedback helps students understand their progress and encourages a growth mindset. तो ये बहुत जरूरी है. इस तरह से इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव क्लासरूम कल्चर भी होना चाहिए आपके अंदर. वो कैसे है कि कल्टीवेटिंग एंड कल्चर contribute to motivating environment, fostering a sense of belonging, to valuing diversity, promoting respectful communication, and addressing the students' need, individual students' need. कि जनरल नहीं हमने बता दिया या बहुत अच्छे स्टूडेंट हाँ हाँ मिला देते हैं तो आपने उनको कर लिया, लेकिन आप इन जनरल क्या है, जो लोग लो एकेडमिक अचीवर है उनकी भी प्रॉब्लम्स को वो करिए, रिजल्ट करिए, और हाई एकेडमिक अचीवर्स को भी करें. तो उनको मतलब अवर मेन एफर्ट शुड बी हाउ टू एंगेज देम एक्टिवली इन द लर्निंग प्रोसेस. क्योंकि लो वाले जो इतने वो होते हैं अचीवमेंट ओरिएंटेड वाले, सब पीछे बैठ जाते हैं क्लास जाके, समझे. तो उसमें भी है कि चेंजिंग द पोजीशन इन द क्लासरूम्स, सेटिंग सीटिंग अरेंजमेंट इज आल्सो नेसेसरी. तो फिर सेलिब्रेशन भी आपके जब अक्सर होता है कि भाई जब फाइनल ईयर में फाइनल वो मिलता है, रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो इस तरह सेलिब्रेशन होता है, पब्लिकली एक्नॉलेजिंग करते हैं हम लोग सक्सेस विद पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर एंड मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस. तो हर इन सब चीजों के लिए भी मोटिवेट करने के लिए भी क्लासरूम फॉर मोटिवेटिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट आल्सो, कि आप अपना यू शुड सेट ए sort of a positive tone. Begin the school year by setting a positive and welcoming tone. Greet students with enthusiasm, establish classroom norms, and communicate high expectations, creating a positive initial impression set a path for learning environment. तो इसी तरह से पॉजिटिव टोन करें, फिजिकल एनवायरनमेंट को भी स्टिमुलेट करें. हाँ, यानी कि क्या, फिजिकल जैसे नर्सरी वगैरह में होता है कि फिजिकल लेआउट ऑफ द क्लासरूम कैन आल्सो इम्पैक्ट मोटिवेशन. Arrange desk or seating in a way that promotes interaction and collaboration. Incorporate visual aids, display of student work and learning resources and enhance the overall ambience of the classroom. कि और बच्चों का भी डिस्प्ले करो कि देखो इसने ये काम किया, तो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग
more from you as compared to the previous year student. और फिर establish करो clear routines को establish करो अपने, continue consistent routines contribute a sense of security and predictability. Establish clear daily routines. समझे? तो बाहर कंट्रीज में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम आए क्लासरूम में टॉपिक लिया पढ़ाना चाहो, वो कहते नहीं, वो एक अपना पूरा शेड्यूल हम लोग देते थे कि 1 वीक में कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, 2nd वीक में कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, 3rd वीक एंड सो ऑन. Suppose if the teacher is on leave, then he is expected to arrange his class, and moreover, whenever he joins the duty, he is expected to teach the same topic as well as in the, so not next period, afterward, that he should make the arrangement of it. तो उसे बताना होगा कि हम कब इस टॉपिक को लेंगे. ये नहीं कि आज हमने छुट्टी ले ली, अब हम कल आए तो हमने आज का और कल का दोनों को निपटा दिया, कोर्स टॉपिक कवर कर दिया, ऐसा नहीं. तो पूरा क्लासरूम का टीचिंग का भी शेड्यूल पूरा बना होता है कि पहले से कि उसमें लेसन कहते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ लेसन्स है, ट्रांजिशंस है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर है सब. तो इससे क्या होता है कि प्रेडिक्टेबिलिटी जो ये होती है ना कि क्या है, तो उसमें कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, देयर आर सम स्टूडेंट्स स्टिल देयर स्टूडेंट, दे व्हेनेवर दे कम एंड अटेंड क्लास, बिफोर दैट दे आल्सो स्टडी. तो इससे क्या होता है कि हमारी एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है, स्टूडेंट्स की एंजाइटी रिड्यूस एंड अलाउ स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन लर्निंग. पुराने थे टीचर, मतलब पहले थे हमारे ही था, हमारे भाई सर कहते हैं जो टॉपिक पढ़ाया जाए पढ़ के जाओ, ऐसे ही, मतलब ये मत सोचो कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे एक रीडिंग लगा के जाओ कि क्या है. तो फिर कहते हैं कि डिफरेंशिएट करो इंस्ट्रक्शन में, कि रिकॉग्नाइज एंड कैटर टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स थ्रू डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी अडॉप्ट टीचिंग मेथड, मटेरियल असेसमेंट टू अकोमोडेट वेरियस लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटी, providing tailored instructions, enhance engagement and motivation among students with different learning process. फिर इंटीग्रेट करो टेक्नोलॉजी को, थॉटफुली इंटीग्रेट करो कि कौन सी मेथड विच वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, विच वुड बी. अब जैसे मैं बताऊं, मैं frankly speaking in the year 2005 as well as 2000, and still I am not so good in preparing PPT. तो मैं, when I was asked to teach through PPT in Malaysia, so frankly speaking, I do not know how to prepare or something like that. So I used to defend myself with sometime with the head of the department. So first you tell me, where is the interaction between the teacher and the student? कि जब PPT से हम पढ़ाएंगे तो PPT का इंटरेक्शन किससे है? PPT का स्टूडेंट से इंटरेक्शन है, PPT का टीचर्स या इंस्ट्रक्टर का इंटरेक्शन है. तो व्हाट अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर? वो तो देखते ही नहीं, वो तो PPT की तरफ देख रहा है, या मैं देख रहा हूँ PPT की तरफ. वो हमारा आपका कहाँ इंटरेक्शन, यानी कि स्टूडेंट टीचर का कहाँ इंटरेक्शन हुआ इससे? तो आई यूज्ड टू डिफेंड लाइक दैट. समझे? तो कहते हैं कि ये इंटीग्रेट करो टेक्नोलॉजी को थॉटफुली, कि वेयर यू आर एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफर. अब बहुत से देखा कि इवन साइंस के टीचर्स हैं, बहुत से हमने देखा कि वो मतलब क्लासरूम में दे सिट ऑन द चेयर एंड टीच साइंस सब्जेक्ट. तो इट इज नॉट so called good or add the relevance to classroom activity. तो कहते हैं इस तरह स्टूडेंट का कोलैबोरेशन को बढ़ाओ, प्रमोट स्टूडेंट कोलैबोरेशन. कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रमोट्स कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड शेयरिंग आइडियाज. कोई टॉपिक दे दिए, उससे कहिए नाउ यू शेयर एंड राइट डाउन. तो अब लिखते हैं तो अब उसमें यही होता है कि एक ने लिख लिया, दो ने लिख लिए, और फिर आफ्टर दैट द
the other students they copy from them. ये assignments वगैरह देते हैं तो उसकी कॉपी कर देते हैं सब, तो हम लोग कुछ देखते ही नहीं। तो कहते हैं students are often motivated by the opportunity to work with their peers and contribute to shared goals. कभी कभी हम नहीं उतना मोटिवेट करते हैं, फ्रैंकली बताएं तो कहते हैं ऑफर करो, चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी को करो, इनकॉर्पोरेट करो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को, इम्प्लीमेंट करो इंटरेक्टिव असेसमेंट को करो, ये जैसे कि क्विजेज हैं, डिस्कशंस हैं, समझे, और फीडबैक है स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस दैट इज मोर नीडेड। At the end, you can cultivate a growth mindset by emphasizing the belief and intelligence and abilities can be developed through effort and perseverance. ये नहीं कि बच्चा पैदाइशी अक्लमंद पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। It can be, intelligence can be enhanced or interest can also be developed through effort and perseverance. To encourage the students to view challenges as opportunities for learning and growth, a growth mindset promotes resilience and intrinsic motivation. So there are certain overcoming challenges we have in creating a motivating classroom, addressing student disengagement, managing classroom behavior, navigating individual learning needs, of balancing standardization and personalization. कि यानी कि आपकी करिकुलम की क्या रिक्वायरमेंट है और आप ने कहाँ तक उसको द पर्सनल लेवल एज अ टीचर you engage the students and motivate and get success in motivating them also. तो इसका यही है कि अब हमारे यहाँ तो क्या एक्सप्लॉइटेशन है, अदरवाइज क्या है कि वो आप स्टूडेंट्स है एट द एंड ऑफ द व्हेन यू finish the course you ask the students to write in brief about the feedback in terms of gaining knowledge a particular subject as well as developing a skill कि आपने क्या डेवलप किया, स्किल क्या डेवलप की, नॉलेज आपको क्या मिली, समझे, and how you can transform that knowledge into practice when you get the job or something like that. So such type of things are very, very important. And now I would like to ask or share with you about some things or the questions which you want to ask or seek clarification from my end. कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप समझते हैं कि आपको बताएं, which can be more important in motivating classroom environment. या आपका अपना कोई अगर आपने अपना कुछ, if you have already added some input or the knowledge from your own experiences, you can share those experiences. ठीक है, तो उमेश बंद हैज रेज्ड a hand. उमेश बताएं क्या क्या क्वेश्चन है आपका. हेलो 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 आप लोग पूछिए क्वेश्चन. उमेश बंद एंड रितु सिंह. हेलो, नमस्कार सर. हाँ नमस्कार. सर मैं रितु सिंह राजकीय महिला महाविद्यालय बांगर कन्नौज से बोल रही हूँ. सर मेरा जी। क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि बहुत तरीके बताए आपने, वेरियस काइंड्स बताए आपने कि किस तरीके से हम बच्चों को मोटिवेट कर रख सकते हैं.
Yeah. और हमें रिवॉर्ड्स वगैरह देने चाहिए। सर मैं बहुत रूरल एरिया में मेरा कॉलेज है, वहाँ पे क्या है बच्चों का माइंडसेट कि बस हमें किसी तरीके से डिग्री ले लेनी है। हाँ, और यही तो एनईपी, जी, एनईपी के आने से सर सिलेबस इतना वेरिएंट हो गया है, उस तरीके से बच्चों को मोटिवेट रखना और उनको करियर काउंसलिंग देना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए सर कुछ सजेस्ट कर दीजिए। हाँ, तो अब उसमें यही कि जैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, उसमें हम कहते हैं कि जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इनिशिएटिव लीजिए कुछ, समझे। तो प्रोजेक्ट बेस्ड में क्या है कि उन्हें एक्शन में क्या है कि हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स दें, यानी कोलैबोरेटिव कुछ एक ग्रुप बना दें बच्चों का, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, और वो मोटिवेट कैसे कर सकते हैं अपनी नॉलेज को या स्किल्स को मीनिंगफुल वेज में कैसे ले सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपके बैलेंस होना चाहिए बिटवीन स्टैंडर्डाइज्ड आपने जो करिकुलम रिक्वायरमेंट्स हैं और पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो है कि हमें क्या अचीव करना है, चैलेंजिंग। तो उसमें क्या है, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं स्टूडेंट के इंटरेस्ट को, उसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को, वेरिड टीचिंग मेथड्स को। तो कहते हैं कि पर्सनलाइज्ड अप्रोचेस जो है इनहांस करते हैं एंगेजमेंट और मोटिवेशन को, समझे। तो ये थोड़ा सा कर सकते हैं कि आपके स्टैंडर्डाइज जो करिकुलम है और पर्सनलाइज्ड उसके क्या चलते हैं उनसे, मतलब देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव रिलेशन। तो उसमें खास तौर से जैसे आपने बताया एनएलपी वगैरह आ गया, तो वेल मैनेज्ड क्लासरूम जो है प्रोवाइड्स ए कंड्यूसिव स्पेस है फॉर मोटिवेशन एंड लर्निंग। अब क्या हो रहा है, हम लोग क्या यहाँ चूंकि इंडिया में खास तौर से इंस्टीट्यूशंस में उतनी फंडिंग नहीं है, रूरल एरियाज में तो बिल्कुल ना के बराबर है, कि जिससे कि हम बात करें। तो इस वजह से बच्चे क्या होता है कि बर्बाद में वो सब पेरेंट्स को वो करते हैं, एक तरह का प्रेशराइज करते हैं कि मैं वो फलाने स्कूल में पढ़ूंगा या फलाने कॉलेज में पढ़ूंगा कि वहां ज्यादा है। तो ये एक तरह कहना चाहिए कि इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं मिल रही, जो कि कैटर डिफरेंट डाइवर्स नीड को, बैकग्राउंड को, या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के स्ट्रेटजीज को शो करे। ये प्रॉब्लम है रूरल एरियाज। और कोई उमेश? जी, थैंक यू सो मच सर। और कोई क्वेश्चन? Hello, sir. जी। Sir, Sandeep Sehgal, sir, I'm here. Sir, the students still they are not getting the concept of the NAP, and they are going by the traditional method still. या And the syllabus make from the university, they have to motivate the students. And what is that? First kind of counseling and what is that awareness program on the syllabus still not conducted by the universities in the colleges particularly. And this is very important for the colleges which are situated in the rural area, like that of the या Rajasthan. या And this NEP attempts tries to make the student skillful, but student doesn't care about the skill. They care only for the degree certificate, sir. या This या we are getting it, sir. यस, आई अंडरस्टैंड। तो ऑफ कोर्स you can adopt so-called the flipped classroom models. Flipped classroom models, their instructional content is delivered outside of class. That is, you can allow your more interactive and engaging in class activities. So by leveraging technology for content delivery, reserving class time for discussion, activities, and application. So as an educator, you can create motivating learning experiences for students. So that is more. So I generally referred this as an flipped classroom model. So you can engage a student in outside as well as inside the class activities.
Thank you, sir. Thank you. I get the point. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. No, thank you, sir. sir. Thank you, sir. Okay, participants. Okay. Thank you, sir. Very Thank good you. lecture. Thank you, Professor Akbar Hussain, sir, for enlightening Thank all you, of Akbar us. Hussain, sir. And I hope from your lecture, all the participants will be Very good. benefited and they will learn the new techniques, things, and the challenges, how to overcome those challenges, and how to How to adjust with overcome the challenges. new New technology education policy also. also. So thank you, sir. Thank And you, sir. Thank you. One and all. for all participants, will rejoin at 10:45 a.m. for next lecture. So thank you, Akbar, sir. Acha, Thank thank you, you, sir. Dr. Mohammed, Thank you, Akbar. Thank you, Thank sir. you. Thank you. opportunity Okay, sir. to Thank you, sir. express my views. Thank you. Rejoin at 10:40. Hmm.